टेरिटोरियल एक्सटेंट। तो जो आपको आप इंटरप्रेट कर रहे हो उसी के हिसाब से क्या जनरल सर्विसेज एक्ट का भी एप्लीकेबिलिटी का स्कोप आ जाएगा। सेक्शन 2 इज नॉट देयर इन द एक्ट। Section 3 is all about definitions. The first definition that you have in the syllabus is the definition of the word act. Here act means an offense or any civil wrong that you have done, and it also includes a series of acts, and sometimes even an illegal omission is considered as an act. Affidavit, swear and oath, all these three words have the same definition. Which three words? Affidavit, oath and swearing. So affidavit shall include affirmations and declaration in case of persons by law allowed to affirm or declare instead of swearing. Do affidavit act as an evidence in the court of law? Central act will mean an act of parliament. Will also mean all those acts passed in the Dominion legislature. Will also include those acts passed by the Governor General before India got its independence. Central government will mean the Governor General. Okay. Sometimes the Governor General can delegate his power to the Chief Commissioner or the government of a province. For that purpose, that particular body will be considered as the central government. After the constitution was made, central government means the President of India. अगर प्रेसिडेंट ने किसी काम के लिए अपना पावर डेलीगेट किया है to a state government or to the chief commissioner, this body will be constituted as the central government, and along with that the union territory administrator will also be considered as the central government. Commencement इस शब्द का मतलब होता है coming into force. Document shall include any matter that is in writing, expressed or described on any substance. Okay, in letters, figures or marks for the purpose of recording. Is my computer file a document? Is my book a document? Is a painting a document? Are files in offices documents? Enactment का मतलब होता है an act. Whether the act is passed by the Union Parliament or by the state legislature will not make a difference. Will all come under the purview of the word enactment. Financial year माने कि 12 months will always start from 1st of April ending on 31st of March. चलो फाइनेंशियल ईयर आया तो कंपैरेटिव वे में हम ईयर को भी समझते थे. ईयर मतलब 12 months. But this will be reckoned according to the British calendar year, starting from 1st of January, ending on 31st of December. And month will be according to the British calendar year. Good faith. Anything that you have done honestly, सच्चे दिल से, मन साफ रख के अगर आपने कुछ काम किया है, it will be considered as if you have done it in good faith, whether negligently or not. But Mong Ongpu versus Mong Si Mong में आप जानते हो, अगर आपके एक्ट में स्पेसिफिकली गुड फेथ को किसी तरह से डिफाइन किया गया है, will you refer that definition? The definition under the GCA will only be considered if your act does not define the word good faith. हो सकता है आईपीसी में गुड फेथ को किसी और तरीके से डिफाइन किया गया है, तब क्या आप उस डेफिनेशन को वो आपको इंटरप्रेट करते वक्त प्रिफर करोगे? कानून की दुनिया अपनी ही दुनिया होती है, ये अपने सपने खुद सजाता है और अपनी दुनिया गवर्नमेंट शैल इंक्लूड बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट as well as the state government.
Government securities means the securities which are issued either by the central government or by the state government. Immovable property shall include land, benefits arising out of land, things attached to the earth and permanently fastened to anything attached to the earth. Land movable है या immovable? Mine, well, timber tree, timber cut from the trees, standing crops, harvested crops, plant and machinery, building, your bungalow, my classroom, a bridge, a dam. साथ में you have to tell me right of way to access from one place to another. Immovable. Right to drain of water. Movable. Wonderful. क्या बात है? Imprisonment could include either description, either rigorous or simple. Law will include acts, rules, case law, regulations and even ordinances. Month हो चुका है. Anything that is not immovable will be a movable property. Oath का definition is the same as affidavit. Offense means an act or an omission which is punishable under law. Official gazette could either be the Gazette of India or the official gazette of a state. A person shall include a company, association or body of individual, whether incorporated or not. Registered is always used in reference to a document. So you cannot register something that you're speaking. Registration के लिए अगर आप जाते हो, it's a document. And where will you get it registered? Under the law that is in time into force. Rule, जैसे कि आपने पढ़ा है DVR को इशू करने के rules. So rule is made an exercise of a power conferred by any enactment and shall include a regulation made as a rule under any enactment. शेड्यूल जानते हो, सेक्शन सब सेक्शन जानते हो. स्वेरिंग की डेफिनेशन एफिडेविट जैसी है. ईयर हो चुका है तो एक आखिरी डेफिनेशन है राइटिंग, मतलब एनीथिंग दैट इज इन विजिबल फॉर्म. Example, printing, lithography, photography, anything that is in visible form will be considered to have been done in writing. Section 5 of the General Clauses Act talks about coming into operation. कोई भी एक्ट ऑपरेशन में कब आती है? जो दिन लिखा है उस नोटिफिकेशन में कि इस दिन से एक्ट ऑपरेशन में आएगी, वही होगा वो दिन जिस दिन से एक्ट कमेंस होगी. है ना? नोटिफिकेशन में एक्ट को नोटिफाई किया है बट ऑपरेशन का डेट नहीं लिखा है, तब एक्ट कब ऑपरेशन में आएगी? जो दिन आपने उस एक्ट को नोटिफाई किया है इन द ऑफिशियल गैजेट. दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ है. जिस दिन गवर्नर जनरल ने या प्रेसिडेंट ने अपना कंसेंट दिया है उसी दिन एक्ट ऑपरेशन में आती है. रिपील और डिलीशन दोनों सेम है या अलग अलग? किसमें आप जड़ से उखाड़ के फेंकते हो? ऐसा माना जाएगा रिपील के केस में कि ये एक्ट कभी कानून की दुनिया में एग्जिस्ट करता ही नहीं था. बट जहां पे एक साइड में हमने कह दिया रिपील का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, दूसरे साइड में सेक्शन 6 में ही हमने कहा रिपील इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट 5 थिंग्स: एनी लिटिगेशन, एनी पेनाल्टी और पनिशमेंट, एनी राइट्स, क्लेम्स और प्रिविलेजेस, प्रायर मैनेजमेंट मतलब ऑपरेशन, या तो इट इज नॉट गोइंग टू रिवाइव एनीथिंग दैट वाज नॉट एनफोर्स्ड अर्लियर. सेक्शन 6A कहता है कोई भी अमेंडमेंट एक्ट के तहत आपने कुछ इंसर्शन, डिलीशन या सब्स्टिट्यूशन करना था, जो आपने कर दिया, आपका अमेंडमेंट एक्ट का पर्पस सॉल्व हो गया, उसी समय से आपका अमेंडमेंट एक्ट रिपील हो जाता है. सेक्शन 7 कहता है रिपील्ड एक्ट रिवाइव हो सकता है. जिस नोटिफिकेशन के द्वारा आप रिपील्ड एक्ट को रिवाइव करते हो उसी नोटिफिकेशन में आप पर्पस भी लिखते हो कि क्यों
आपने रिपील्ड एक्ट को रिवाइव किया है। सेक्शन 8 कहता है कोई एक्ट रिपील हो चुका है बट फिर भी दूसरे एक्ट में उसका रेफरेंस दिया गया है, तो वो रेफरेंस के लिए हम ऐसा पढ़ेंगे जैसे कि रिपील नहीं बल्कि जो रिपील्ड एक्ट के बदले में री एनैक्ट एक्ट आया है, सुन रहे हो क्या, वही माना जाएगा उसका रेफरेंस। यस और नो गाइस? जैसे इनकम टैक्स एक्ट में हमने अभी भी कंपनीज एक्ट 1956 लिखा है, तो हम पढ़ते वक्त उसको पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट 2013। कोई भी एक्ट में अगर कोई समय के बारे में कुछ पॉइंट दिया गया है, we will always exclude the first day in the series and we will always include the last day in the series. हाँ है ना? क्या हुआ? इतनी डर रही मैं। कंप्यूटेशन ऑफ टाइम। सुनो मेरी बात, कोई भी एक्ट में अगर कोर्ट में जाने का कोई समय प्रिस्क्राइब किया गया है एंड ऑन द लास्ट डे द कोर्ट इज क्लोज्ड, इवन इफ यू सबमिट यस ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे इट विल बी एक्सेप्टेड। डिस्टेंस कैसे मेजर होगा? स्ट्रेट लाइन ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्या ड्यूटी कैलकुलेट होगा? ऑन प्रो रेटा बेसिस, है ना? सो ग्रेटर या लेसर क्वांटिटी अगर दिया गया है उसी हिसाब से ड्यूटी कैलकुलेट किया जाएगा। एंड सेक्शन 13 कहता है मैस्कुलाइन जेंडर विल इंक्लूड द फीमेल्स एंड वाइस वर्सा, सिंगुलर टू इंक्लूड प्लूरल and plural to include singular. Next, section number 14. कोई भी पावर अगर आपको दिया गया है, is this power a one time power or a general power? General power. And you can exercise this power from time to time as the situation and demand arises till the time it is not revoked. Section 15 कहता है आपको अगर किसी को अपॉइंट करना है और ड्यूटीज उसकी डिफाइन करनी है या फंक्शंस अगर डिफाइन करनी है, यू कैन ईदर अपॉइंट एंड डिफाइन हिज फंक्शंस बाय नेम और एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो मींस बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोजीशन। सेक्शन 16 कहता है अगर हमने आपको अपॉइंट करने का पावर दिया है, आप ही के पास उस बंदे को सस्पेंड करने का भी पावर दिया गया है। कोई भी फंक्शंस को डिफाइन करते वक्त अगर हमने किसी ऑफिशियल टाइटल को डिस्क्राइब किया है, जो भी सारे लोग वो ऑफिशियल टाइटल के परव्यू में आते हैं उन सभी लोगों के वो राइट्स और ड्यूटीज रहेगी। सेक्शन 18 कहता है अगर कोई पर्सन की कैजुअल वैकेंसी हो जाती है, जो पोजीशन उस बंदे की थी उसी उसके सक्सेसर की रहेगी। सक्सेसर की भी वही राइट्स, वही ड्यूटीज और वही एक्ट्स भी एप्लीकेबल हो गए। किसी सुपीरियर ने अपने पावर्स डेलीगेट किए टू ए सबऑर्डिनेट, जो एक्ट्स रूल्स रेगुलेशन सुपीरियर को एप्लीकेबल थे वही एक्ट्स रूल्स रेगुलेशन सबऑर्डिनेट को भी एप्लीकेबल रहेंगे। हाँ, जितने समय के लिए हमने डेलीगेट किया है उतने समय के लिए। सेक्शन 20 कहता है अगर आपने कोई रूल नोटिफिकेशन इशू किया है और इसी रूल या नोटिफिकेशन में कुछ शब्द है जिनको आपको इंटरप्रेट करना है, ये शब्दों का मतलब वही मतलब रहेगा जो आपके ओरिजिनल एक्ट में बताया गया है। यस और नो गाइस? नोटिफिकेशन में कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव नोटिफिकेशंस की यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ, जैसे कि गवर्नमेंट जो है इनकम टैक्स ऑफिसर्स को नोटिस भेजता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सच नोटिफिकेशंस। यस और नो गाइस? नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन 21 कहता है इफ यू हैव द पावर टू इशू नोटिफिकेशंस, ऑर्डर्स और रूल्स, यू ओनली हैव द पावर टू अमेंड, यस, रिसाइन और वेरी सच रूल्स और नोटिफिकेशंस। जस्ट वन सेकंड, एक बात बताना, सर का कॉल नहीं था, कुछ और था। अरे लोग कुछ आ रहे हैं क्या? वो
वो आ रहे हैं क्या वो? अच्छा सुनो मेरी बात। सेक्शन 22 ये बात करता है रूल्स को आप बनाना शुरू कर सकते हो वंस द एक्ट हैज बीन पास्ड, बट रूल्स उसी दिन से कमेंस हो गए जिस दिन से एक्ट कमेंस होता है। सही है गलत? रूल्स को बनाने के लिए प्रॉपर ऑथोरिटी जो है या तो स्यू मोटो या तो फिर बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ड्राफ्ट रूल्स को बनाती है। यही ड्राफ्ट रूल्स को वो सारी ऑथोरिटीज को इशू किया जाएगा जो रूल से अफेक्ट होते हैं। These authorities will suggest their suggestions or give their objections. Accordingly, the rules will be changed and these updated rules will be published in the official gazette. Section 24 कहता है रिपील्ड एक्ट री-एनैक्ट हो गई, तो जैसे रिपील्ड एक्ट री-एनैक्ट होती है उससे एसोसिएटेड रूल्स नोटिफिकेशंस भी रिवाइव हो जाते हैं। यस और नो गाइस? सेक्शन 25 कहता है कोई भी फाइन को किस तरीके से कलेक्ट किया जाएगा, उसी तरीके से कलेक्ट किया जाएगा जैसे बताया है अंडर द इंडियन पीनल कोड एंड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। सेक्शन 26 कहता है अगर आपने कुछ कांड किया है which is punishable under more than one acts, you will not be held guilty under all the acts or both the acts. You will be held guilty under either of the acts or any one of the acts. But you cannot be punished for the same offense in multiple acts. कौन से एक्ट में आपको पनिश किया जाएगा वो जज साहब खुद डिसाइड करेंगे। Usually it is more stricter, but सेक्शन 27 कहता है सर्विस बाय पोस्ट। देखो पहली बात तो अगर आपकी एक्ट स्पेसिफिकली कुछ डिमांड करती है यू नीड टू सेंड द नोटिस बाय दैट मोड ओनली, बट इफ योर एक्ट इज साइंड you need to serve the document by properly addressing, prepaying the envelope and by registered post. एक्ट ने कहा रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू से भेजो और आपने रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा, ये सर्विस वैलिड है या इनवैलिड? इनवैलिड। आपने रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना चाहिए था, रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजा है, बट रेसिपिएंट ने क्लेम नहीं किया कि आपका सर्विस ऑफ नोटिस वैलिड है। वंडरफुल। साइटेशन ऑफ इनैक्टमेंट्स ईदर बाय फुल टाइटल, शॉर्ट टाइटल एंड शॉर्ट टाइटल विद द ईयर। हाँ या ना? 29 कहता है हो सकता है जनरल क्लॉसेस एक्ट आने के भी पहले दूसरी एक्ट बनी रही है, बट उनको इंटरप्रेट करते वक्त आप जनरल क्लॉसेस एक्ट के प्रोविजंस को अप्लाई कर सकते हो। और ऑर्डिनेंस इज कंसिडर्ड एज एन एक्ट ओनली, और जैसे एक्ट के इफेक्ट्स होते हैं एप्लीकेशन में वैसे ही ऑर्डिनेंस के भी इफेक्ट रहेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल